अस्सलाम वालेकुम बेटा। अवैस सब, अवैस, you are student or part of management? Okay, we start the proceeding from the beginning. First one is sources of law. Initially, what is law? What is law? That is rules made by authority for the proper regulation of a community or society or for the correct conduct of life. That is the definition. Welcome, beta. That is the first definition. Second one is law is a rule of conduct, a set of rules imposed and enforced by the government, a country, a sovereign to keep peace and order in the society. These are the two definitions. How law is made? There is mostly 6 sources of law. There are 6 sources of law. The law is made. First one is English mercantile law. That is the EML, English mercantile law. Majority of our sources of law has been derived from EML, English mercantile law. Just like Partnership Act 1932, सेल ऑफ गुड्स 1930, तो ये उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, तो हमने मेजॉरिटी जो लॉ के सोर्सेज हैं वो इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ सिस्टम से लिए हैं. तो फर्स्ट मेन सोर्स ऑफ लॉ इज इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, दैट इज EML, with little bit amend या change, slight change. Second one is statute law. Statute law is also called Act of Parliament. Statute law is also called the Act of Parliament. That is, when bill is passed by Parliament and signed by the President, it becomes an act or statute law. When bill is passed by Parliament and Parliament, यहाँ हम आगे चेक definition लेंगे. Parliament is combination of two houses. One is called National Assembly and second is called Senate. National Assembly has 342 members, 272 elected, 60 women, 10 minorities. They are elected for 5 years and their age should be at least 25 years. National Assembly is headed by Speaker National Assembly. Whereas Senate consists of 104 members. They are elected for 6 years. Their age should be 30 years. It is headed by Chairman Senate. Senate is also called Upper House and Permanent Law-Making Body. जब कोई बिल नेशनल असेंबली और सेनेट में पेश किया जाता है, ठीक है, तो वो पास कर देते हैं और सदर साइन कर देता है 10 दिनों में, दैट बिकम स्टैट्यूट लॉ या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट.
G. Next one is judicial decision or case law, also called precedent. Precedent is a judgment or decision of the court of as an authority for deciding an identical case which serve as the authority for legal principles. Embodied in its decision, precedent includes ratio decidendi and obiter dicta. Whenever an act is silent on a point or there is ambiguity, the judge has to decide the case according to the principle of justice, equity, equal and good conscience. वो सिचुएशन कि जब कोई पहले ये बता दूं कि जजेस हमारे पास सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन कोई ऐसा मैटर आ जाए कि जिसमें मेन लॉ खामोश हो, तो फिर जजेस मिल के कोई लॉ बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड, ताकि आइंदा आने वाले जजेस को प्रॉब्लम ना हो, तो दैट इज कॉल्ड जुडिशियल डिसीजन या प्रेसिडेंट। लेकिन वो सिर्फ उनके अपने जजेस के लिए होता है। Is it okay? Any doubt? Okay. Third one is custom and usage. Third one is custom and usage. वो रस्म रवाज जो बहुत अरसे से चल रहे हों और उनको कोर्ट भी एक्सेप्ट कर ले मुआशरे के साथ, तो वो भी हमारे पास सोर्स ऑफ लॉ बन जाते हैं। जैसे प्लेज है, गिरवी रखवाना। अभी हम किसी को पैसे चाहिए हो, वो बैंक में सोना रखवाएगा और पैसे लेगा। गांव देहातों में अब भी लोग जो है वो वडेरे के पास पैसे रखवा, कोई चीज रखवा कर पैसे लेते हैं, तो ये भी प्लेज या मुशारका मुदारबा, ठीक है। तो रूरल एरिया में अब भी लोग मिलके किसी का जो है वो जमीनों की जो है, किसी का कैपिटल है जमीन है, दूसरा कोई बंदा उस पर खेती बाड़ी करता है, दोनों फिर मिलकर वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो मुशारका मुदारबा ये मोस्टली वो कस्टम एंड यूजेज दैट हैज बीन इन प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग टाइम because binding on the contracting party, a custom when accepted by the court and incorporated in a judicial decision become a legal custom. Now it is being replaced by Shariat law, such as Mudarba Musharka. It is a social rule or habit which the people have adopted themselves for their conduct. Is it okay? Next, legislation, that is delegated legislation. To save time for the parliament, when authority is delegated to other bodies to make rules such as minister, factories, local authorities, companies, stock exchange, etc., it is called delegated legislation. Last one है Shariat law. According to and as ordered by and guided by Quran or Sunnah under the great blessing of Almighty. All sources are clear. Next one is Parliament has already been defined. Parliament is a combination of two houses. One is called National Assembly and second is called Senate. Already has been described. National Assembly consists of 342 members and their age should be 25 years, and that is headed by Speaker National Assembly. Whereas Senate consists of 104 members. They are elected for 6 years. Okay? Their age should be at least 30. And it is headed by Chairman Senate. Senate is also called Upper House and Permanent Lawmaking Body. Now, President. President, he shall be a male, Muslim, sound mind, and of 45 years. He is considered the head of state. Prime Minister, his age should be at least 25 and above. His main role is advisory to President. Is it okay? Now, sources of law we have already discussed, but other one is agreement, same. Basically, ये sources of law English के हैं, तो मैंने अपने वाले बताए हैं.
पाकिस्तान में जो सोर्सेज ऑफ लॉ है। In Pakistan, both criminal and civil law has been derived from two sources: case law, that is law merchant, common law and equity, and legislation, that is act of parliament plus delegated legislation. Law merchant is old name is law merchant, that is lex mercantoria. Law merchant तिजारत के लॉ को कहते हैं, और इसका पुराना नाम जो है वो लेक्स mercantoria है। कभी कभी इसका नाम भी आता है, एज एमसीक्यूज भी आता है, as a collection of legal principle which grew up in course of time with the progress of trade and commerce in England. Its basis was custom and practice of merchants. At first it was dealt with separately in industrial courts, district courts, and eventually it became part of common law. जो हमारे कोर्स में हम उनको ज्यादा जो है डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें हम स्किप करेंगे। Classification of law. Classification of law is combination of four types. One is public law, other is civil law, third one is private law, public law, private law, civil law, and criminal law. Public law that governs the relationship between the individual and the state. Public law is concerned with the public as a whole. ये public law जो है, जैसे रोड पे रेड सिग्नल है तो रुकना है, ये पब्लिक लॉ है, ठीक है। जो भी रूल रेगुलेशन स्टेट बनाती है पब्लिक के कंडक्ट के लिए, दैट इज कॉल्ड पब्लिक लॉ। कोई किसी की प्रॉपर्टी है वो छीने ना, ठीक है, तो ये पब्लिक लॉ का पार्ट आता है। इसके चार पार्ट्स हैं। इंटरनेशनल लॉ, आपने वीजा वगैरह अप्लाई करना है, बाहर जाना है या बाहर के लॉज को, तो इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और क्रिमिनल लॉ, इसके चार पार्ट्स हैं। इसका कभी कभी एमसीक्यूज भी आता है, ठीक है। इनमें से चार, ये चार नाम याद हो तो अच्छी बात है। प्राइवेट लॉ गवर्न द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल बिटवीन इंडिविजुअल, ठीक है। कंपनी लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ गारंटी, आप सेल बाय गुड्स चीजें करते हैं तो वो सिविल लॉ में जाता है। प्राइवेट लॉ में सिविल लॉ एक्सटेंडेड शेप है प्राइवेट लॉ की। आपने किसी से कोई डील की और उसने जैसे गाड़ी बेची, वो पैसे नहीं दे रहा, तो आप कानून, या जॉब शुरू की और वो कंपनी वाले पैसे नहीं दे रहे, तो आप खुद कानून को हाथ में नहीं लेंगे, उसके लिए सिविल लॉ में अप्लाई करेंगे अपने रेमेडीज के लिए। दोनों का डिफरेंस क्रिमिनल और सिविल लॉ का। सिविल लॉ केस अफेक्ट ओनली द इंजर्ड पर्सन, जैसे आपने गाड़ी बेची, पैसे नहीं दे रहा, सिर्फ जो है इंजर्ड पर्सन जिसको पैसे नहीं मिले उसको अफेक्ट करता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब करता है। किसी ने बम ब्लास्ट किया, मर्डर किया, पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब होती है। सिविल लॉ प्रोसीडिंग इज इंस्टिगेटेड बाय द इंजर्ड पार्टी, जिसका हक मारा गया है, लेकिन यहाँ पे केस कौन चलाएगा? स्टेट। सिविल लॉ रेगुलेट्स डिस्प्यूट्स, right and obligation of the parties. Criminal law punish the guilty party. Civil law the compensation awarded, जो सिविल लॉ में गाड़ी बेची, पैसे नहीं मिले, वो केस किया आपने, जो पैसे मिलेंगे वो इंजर्ड पार्टी को मिलेंगे। यहाँ पे स्टेट। इन क्रिमिनल केसेस द फाइन रिकवर्ड फ्रॉम द offender are retained by the state. सिंपल वर्ड्स में अगर आप देखें तो सिविल लॉ का सारा बर्डन सिविल प्राइवेट पार्टीज में होता है, क्रिमिनल में क्रिमिनल अक्यूज्ड और स्टेट के साथ होता है। यहाँ पे जो केस कौन इनिशिएट करेगा सिविल में? एग्रीव पार्टी, यहाँ पे स्टेट। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? जिसने गाड़ी बेची और पैसे नहीं मिले, एग्रीव पार्टी, यहाँ पे स्टेट। हल्का सा कंसेप्ट इनका दिया है, हमें बहुत सी चीजें कवर करनी है इसमें। सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, सबसे पहले है हमारे पास सिस्टम ऑफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द हायरार्की। इसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद है और पूरे कंट्री के मैटर्स ये देखती है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में सारे जितने भी डिसीजन है, फाइनल रिव्यू वगैरह सारे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अफीफा, आपने कैसे ज्वाइन किया? कुछ बच्चों की कंप्लेन आ रही है कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे। वो तो गिवन है, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे। चले रिकॉर्डेड ले लेंगे। ओके, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट, अपेक्स कोर्ट इन द कंट्री। और ये अपर लेवल के मैटर भी डील करती है और क्लास लेवल भी डील करती है और लोअर लेवल भी, यानी हाई कोर्ट प्रिवेंट्स किया तो उनके मैटर देखती है और अपर लेवल सेनेट, नेशनल असेंबली, क्रिकेट बोर्ड उनके भी देखती है, इलेक्शन कमीशन। और क्लास हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का डिस्प्यूट हो गया वो मैटर्स भी देखती है। फिर है हमारे पास हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर प्रोविंस की अपनी कोर्ट होती है। इस मीन्स कि हमारे पास 4 कोर्ट्स हैं सूबे में, ठीक है, 4 सूबे हैं, 4 कोर्ट्स, और 5वीं इस्लामाबाद में है। वो इस्लामाबाद और जो है रिलेटिव एरियाज को, मैटर्स को देखती है। तो 5 हाई कोर्ट्स हैं हमारे पास। हाई कोर्ट्स के फंक्शन आगे चल के आएंगे। 2 फंक्शन इसके अहम है हाई कोर्ट के, वो आगे नीचे डिटेल में होंगे। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको हाई कोर्ट के फंक्शन में ले जाता हूं, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन आमतौर पे आता है। ये था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस पाकिस्तान इज अपेक्स कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट है पाकिस्तान में। हाई कोर्ट के 2 पार्ट्स वो अहम हैं। वन इज हबीज कॉर्पस एंड सेकंड वन इज प्रीरोगेटिव ऑर्डर। फर्स्ट वन इज हबीज कॉर्पस। हबीज कॉर्पस मीन an order of the court to release a person wrongfully detained। इसका मतलब यह है कि कोर्ट, किसी पर्सन ने आपको या किसी पुलिस वाले ने या किसी ने भी आपको डिटेन किया है wrongfully। अगर तो आप पे जुर्म है तो एफआईआर काटे, नहीं है तो छोड़ दें। ना एफआईआर काटे हैं ना छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप कोर्ट में अप्लाई करेंगे कि wrongfully डिटेन किया गया, हिप से जेब बेजा में रखना। तो आप कोर्ट में अप्लाई करेंगे हाई कोर्ट में, तो वो आपके पर्सन को रिलीज करने का ऑर्डर जारी करेगी। दैट इज रिट ऑफ हबीज कॉर्पस। ये पिछले दिनों एंकर एक इमरान थे, सेम केस अगर जेल में हो, तो जब भी किसी पर्सन को कोई जो है अरेस्ट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर नहीं करते, एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम, अगर वो पेश नहीं करते तो दैट विल बी कंसिडर्ड wrongful डिटेंशन, हिप से बेजा में रखना। कोई डाउट? दूसरे नंबर पे प्रीरोगेटिव ऑर्डर। प्रीरोगेटिव ऑर्डर्स, इसको खसूसी इख्तियार कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। मैंडामस, मैंडामस एन ऑर्डर ऑफ द रिक्वायर द कोर्ट और अदर बॉडी टू कैरी आउट अ पब्लिक ड्यूटी। आपका केस है मलीर कोर्ट में, मलीर कोर्ट केस नहीं चला रही, तो आप अप्लाई करेंगे कि हमारा केस चलाया जाए, तो कोर्ट उनको ऑर्डर जारी करेगी कि इनका केस जल्दी चलाओ। दैट इज मैंडामस। जब भी किसी पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर करेगी कोई पब्लिक ड्यूटी कैरी ऑन करने के लिए, दैट विल बी टर्म्ड एज मैंडामस। लेकिन उसमें कोई कदगन लगा देती हैं कि ये 3 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए या कोई और डॉक्यूमेंट शामिल नहीं करने, कोई पाबंदी दरमियान में लगा देती है, दैट इज प्रोहिबिशन। और जब उसका रिकॉर्ड रिव्यू के लिए मांगती है
दैट इज सर्शुरेरी। रिकॉर्ड रिव्यू के लिए मांगेगी, दैट इज सर्शुरेरी। हाई कोर्ट के फंक्शन आपको उम्मीद है क्लियर होंगे जी। तो इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट थी, फिर हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के साथ कंपनी कोर्ट्स और बैंकिंग कोर्ट्स हैं। अब कंपनी कोर्ट्स और बैंकिंग कोर्ट्स के जो केस हैं वो इन बैंकिंग इन कंपनीज में जाए, मतलब बैंकिंग कोर्ट के केस बैंकिंग कोर्ट में जाएंगे और कंपनी के केस कंपनी कोर्ट्स में जाएंगे। ये इक्वल टू, इनकी पावर इक्वल टू हाई कोर्ट्स होती है। फिर है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, गार्डियन कोर्ट और सेशन कोर्ट। जी, सेशन कोर्ट की डिटेल जो है वो ये है कि सेशन कोर्ट में 3 किस्म के जज होते हैं, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। सेशन जज जो है वो ऑल किस्म की पनिशमेंट दे सकते हैं, इंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी सजाए मौत और उम्र कैद भी दे सकते हैं, बट दैट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अप्रूव करेगी। फिर इसमें 3 चीजें हैं कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड जस्टिस ऑफ पीस। फर्स्ट क्लास जो है मजिस्ट्रेट, ये 3 साल तक सजा दे सकता है, 15,000 रुपए जुर्माना कर सकता है और विपिंग लैशेस कोड़े मार सकता है, की सजा दे सकता है। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो 1 साल तक सजा दे सकते हैं और 5,000 जुर्माना कर सकते हैं। थर्ड केस जो है वो जो नए नए जज बने हैं वो 1,000 तक जुर्माना और 1 महीना कैद दे सकते हैं। और क्रिमिनल कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 30, अरेस्ट पावर जब किसी को दी जाती है, जैसे ये धांधली हो रहा है, घपला हो रहा है या धांधली कह रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, तो किसी को अरेस्ट करने की अथॉरिटी देते हैं तो अंडर सेक्शन 30 स्पेशल जो है वो होती है, वो अरेस्ट कर सकते हैं, सजा नहीं दे सकते। फिर है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में सिविल कोर्ट्स फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, रेंट कंट्रोल और फैमिली कोर्ट्स। तो सिविल कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास तमाम जो है पेमेंट जितनी भी है, अमाउंट लिमिट नहीं है, वो केस सुन सकते हैं। सेकंड क्लास जो सिर्फ 50,000 तक सुन सकते हैं, यानी फर्स्ट क्लास के लिए अमाउंट लिमिट नहीं है। सेकंड क्लास 50,000 तक के केसेस सुन सकते हैं और थर्ड क्लास 20,000 तक के केसेस जो है वो डील करते हैं। मोस्टली ये वो लोग होते हैं जो भी नए नए अपॉइंट हुए हैं। रेंट कंट्रोल, रेंट के मामले कोर्ट में जाएंगे और फैमिली डिस्प्यूट वगैरह जो है, डाइवोर्स वगैरह, वो फैमिली कोर्ट्स में जाएगी। एक चीज है गार्डियन कोर्ट। गार्डियन कोर्ट वो कोर्ट होती है जब किसी पे कोई जो है गार्डियन कोर्ट ने यानी किसी का बच्चे के जो है, बच्चा अकेला रह गया, माँ बाप की डेथ हो गई, उस पे या अलहदगी हो गई, कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट कर दिया है, तो गार्डियन कोर्ट वार्ड एंड वॉच एक्ट 1890 के तहत वो उसका गार्डियन जो है उसकी देखभाल करेगा और जब तक वो माइनर जिसकी देखभाल करे 21 ईयर्स का नहीं हो जाता, वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद या बेच नहीं सकते। इज इट ओके? कोई बेटा बेटी जिसको समझ ना आ रही हो? टर्म यूज इन कोर्ट, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, या फर्स्ट टाइम आपका केस सुना जाता है उसको कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कहते हैं। जहां पे आपका फर्स्ट टाइम केस चला उसको कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कहते हैं। उससे आप मुतमिन नहीं हुए, अगली कोर्ट में गए, अपील की, उसको अपेलेट कोर्ट कहते हैं। अपेलेट कोर्ट में जब गए, उस कोर्ट ने आपका डिसीजन चेंज कर दिया तो डिसीजन रिवर्सल होगा। यानी आपको केस सजा हुई थी 3 साल, इन्होंने चेंज कर दी तो ये 2 साल कर दी तो ये रिवर्सल होगा। वो मेंटेन रखी तो अपहेल्ड होगा। जो सजा दी गई है वो मेंटेन रखें तो अपहेल्ड होता है, चेंज कर दें तो डिसीजन रिवर्सल होगा। एक चीज इसमें और है जिसका एमसीक्यूज भी आता है, डिसीजन ओवररूल्ड।
डिसीजन ओवर रूल्ड का मतलब ये होता है कि या तो कोर्ट ने फैक्ट्स नहीं सही देखे या लॉ सही नहीं अप्लाया, उस डिसीजन को कालेदम करार दे देते हैं। ठीक है, कालेदम करार दे देते हैं, ओवर रूल्ड कर देते हैं। जैसे मैं आपको लोकल एग्जांपल देता हूं कि फिल्मों में आपने देखा होगा कि मोहम्मद अली ने गोली चलाई, वो बंदा मर गया। अब जाहिर है सामने एविडेंस हमारे पास है कि मोहम्मद अली ने गोली चलाई है, तो अब जब सजा दी, यानी उसको सजा दी, लेकिन बाद में पता चला कि वो उस गोली से मरे नहीं, फ्रांसिक हुआ, पता चला उस गोली से तो मरे ही नहीं, किसी दूसरी गोली से, पीछे पर्दे के पीछे जेबा छुपी थी, उसने गोली चलाई है। तो अब वो जो मोहम्मद अली को सजा हुई है वो ओवर रूल्ड हो जाएगी। मीन जब या फैक्ट्स ऑफ केस को नहीं थे या लॉ सही नहीं अप्लाई किया गया, तो जो कोर्ट जो है, जिस कोर्ट ने फैसला किया उससे अगली कोर्ट अपील में गए, तो उसके पास ये इख्तियार है कि वो उस फैसले को कालेदम करार दे दे, ओवर रूल्ड कर दे। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा। सेशन कोर्ट वगैरह में सारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से बचा चुका हूं, मजिस्ट्रेट कोर्ट भी, फैमिली कोर्ट्स, वारशिप, गार्डियन, सारे वो उसमें होते हैं। अच्छा, इसमें एक कोर्ट है जो आपके इंग्लिश सिस्टम में नहीं है, दैट इज फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट FSC कहते हैं। जब आपकी कंट्री में कोई ऐसा मैटर प्रिवेल हो रहा हो या बनाया जा रहा हो जो इस्लाम के अगेंस्ट हो, तो ये FSC हरकत में आती है। ठीक है, ना सिर्फ उस केस को रोकती है बल्कि इस्लामिक लॉ के तहत उसको इंप्लीमेंट करवाती है। इनके पास आर्टिकल 203D-1 के तहत ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 1973 का, कि ये जब देखते हैं कि कोई लॉ गलत बनाया जा रहा है या प्रिवेल हो रहा है, तो वो ना सिर्फ उस लॉ को चैलेंज करेंगे बल्कि अपना, उनकी बात सुनने के बाद अपना लॉ इंपोज करेंगे। ठीक है, इज इट ओके बेटा? अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछा करें, वेलकम। सुकून से पूछें, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, FSC चूंकि फेडरल लेवल पे है, इसके अगेंस्ट अगर आप अपील करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जी, फिर आपका एक अहम चीज है, ये सारे मैं पढ़ा चुका हूं, ये डिटेल ऊपर बता चुका हूं, कितना जुर्माना है, कितनी सजा। जैसे फर्स्ट क्लास में है, मजिस्ट्रेट 3 साल कैद दे सकता है, 15,000 जुर्माना कर सकता है और विपिंग, कोड़े मार सकता है। ठीक है, सेकंड क्लास जो 1 साल कैद, 5,000 जुर्माना। थर्ड क्लास 1 महीना कैद और 1,000, ये 100 गलत लिखा हुआ है, 1,000 जुर्माना है। बेसिकली ये डॉलर थे जो रुपीज में ट्रांसफर किए गए। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट, ये आपका क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट मैंने पहले बताया था, सोर्स ऑफ थर्ड सोर्स ऑफ लॉ बताया था, कि जब जजेस कोई मिल के फैसला करते हैं, ठीक है, जब उनके पास कोई केस आ जाए और ऐसा केस पहले ना हो लॉ में, तो मिल के फैसला करते हैं और
कि आइंदा आने वाले जजेस के पास कोई केस आए जिसका लॉ में कोई डिटेल ना हो, तो वो फिर एक जो है पैटर्न सेट कर देते हैं कि इस रूल को फॉलो करना है। ठीक है, कोई केस आया उनके पास, वो हल किया और फिर वो अपने जजेस के लिए एक पैरामीटर सेट कर दिया कि आइंदा कोई ऐसा केस है तो इस रूल को फॉलो करना है, दैट इज प्रीसीडेंट। जैसे फर्स्ट टाइम डीएनए हुआ, ठीक है, किसी ने कहा कि ये बच्चा जो है इसका है, दूसरे ने कहा नहीं मेरा नहीं है, या कोई ऐसा एलिमेंट्स हुआ, या चोरी जिसने की वो कहते मैंने नहीं की, फिंगरप्रिंट्स है। तो फर्स्ट टाइम जब डीएनए लॉ में नहीं था, तो डीएनए टेस्ट जब हुआ, ठीक है, और आइंदा के लिए उन्होंने मिलकर फैसला किया, आइंदा के लिए बाइंड कर दिया कि आइंदा कोई भी केस आए तो इस रूल को फॉलो करना है, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंट की 4 टाइप्स हैं, ओरिजिनल, डिक्लेरेटरी, बाइंडिंग, परसुएसिव। ओरिजिनल प्रेसिडेंट जो फर्स्ट टाइम बनाया गया है उसको ओरिजिनल प्रेसिडेंट कहते हैं। उसमें किसी ने ऑब्जेक्शन किया, दोबारा वो जजेस बैठे मिलकर फैसला किया, अगर वो सही नहीं था तो उसको कैंसिल कर दिया, अगर उसको कंटिन्यू रखा, वो सही है कंटिन्यू करा, ठीक है, किया, तो वो डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट होगा। बाइंडिंग प्रिंसिपल जो हर सूरत फॉलो करना है, जैसे डीएनए टेस्ट वगैरह हर सूरत फॉलो करना है लोअर कोर्ट्स को, वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट है। और परसुएसिव वो सिचुएशन होती है कि जब आपको कोई केस ऐसा जिससे आपको हेल्प मिल सकती है, से फॉर एग्जांपल के एक मर्डर हुआ, वहां पे 4 गवाह थे, चारों पूरे थे, हालांकि वो झूठ बोल रहे थे, तो जज परेशान था कि बंदे ने शक्ल से मुलजम नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि एविडेंस पूरे थे, वो सोचता रहा, फिर उसने प्रीवियस एक केस देखा, उससे उसको हेल्प मिली। अब वो आके उसने चारों गवाहों को बुलाया, बोला कि जो आपने गवाही दिया कि इसने मर्डर किया है, हमने देखा है, तो उस वक्त रात थी, अंधेरा था, क्या आपको सही नजर ना आया हो? तो कहते नहीं जी, चांद क्लियर निकला हुआ था, हमें नजर आ रहा था, लेकिन जब जज ने डेट निकलवाई तो उस दिन चांद नहीं था, अंधेरा था, तो इट्स मीन वो झूठ बोल रहे थे। तो दूसरे केस से आपको हेल्प मिल जाती है, दैट इज परसुएसिव। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। प्रीसीडेंट नॉट बाइंडिंग, जब भी ये जज जो है फैसला करते हैं, इसमें 2 चीजें होती हैं, रेशो डेसिडेंडी और ओबिटर डिक्टा। रेशो डेसिडेंडी जो डीएनए टेस्ट करवाया, जैसे मेन जो उसके पास एलिमेंट है, रीजन है, तो किन सूरतों में आपका बाइंडिंग नहीं होगा? एक तो यह है कि व्हेन इट इज ओवर रूल्ड बाई हायर कोर्ट, हायर कोर्ट ने जिसने लॉ बनाया था उससे ऊपर वाली कोर्ट ने मना कर दिया। दूसरा, ओवर रूल्ड बाई स्टेच्यूट, यानी नेशनल असेंबली ने मना कर दिया तो ये नहीं चलाना। 2, तीसरा, वो प्रेसिडेंट बनाया गया पर इनक्यूरम, यानी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बनाया गया, सही नहीं बना, या उसके मटेरियल फैक्ट्स डिफरेंस थे, ठीक है, या रेशियो डेसिडेंडी क्लियर नहीं है और क्लियरली कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। इन 5 कंडीशन में प्रेसिडेंट बाइंड नहीं होगा। क्योंकि अब आपका रिटर्न आता है तो ये भी अच्छा रिटर्न क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल याद करना है, ओवर रूल्ड बाई हायर कोर्ट, ओवर रूल्ड बाई सेनेट, लैक ऑफ नॉलेज, मटेरियल फैक्ट्स डिफरेंसेस, ठीक है, और ऑब्स्क्योर, धुंधली है, वाजिया नहीं है। ये 5 बातें आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। एडवांटेज क्या है कि लॉ बना बनाया होता है, उसको आप जजेस के पास केस है तो उसको सोचना नहीं पड़ता, या वो सेम लॉ बना हुआ उसी को अप्लाई कर देंगे, टाइम भी बच जाएगा, ठीक है, और उस पर कोई एलिगेशन भी नहीं आएगी कि आपने गलत फैसला किया है, ऑलरेडी जैसा एक फैसला हुआ उसी तरह वो फैसले कर देंगे। लेकिन डिसएडवांटेज, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जजेस को जब पक्की पकाई चीज मिल जाएगी तो उनका अपना जो सोचने की या एक्सपीरियंस लेने की जो है मौका होता है वो ज़ाया हो जाएगा, वो डेवलप नहीं होंगे। जब अगला लॉ बना हुआ उसी तरह से उठा कर फैसला कर दिया, उनका अपनी डिस्क्रिप्शन डेवलप नहीं होगी, एक बात। दूसरा, बहुत दफा वो मटेरियल डिफरेंसेस होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, तो वो सेम फैसला कर दे तब भी सही नहीं होता, तो कुछ डिसएडवांटेज है, फिर वो कन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स भी आ सकते हैं, तो इसलिए डिसएडवांटेज है। इतना काफी है इसके लिए रेशियो डेसिडेंडी और इसका।
पाकिस्तान लॉ मेकिंग अथॉरिटी। हमारे पास लॉ मेकिंग अथॉरिटी 3 है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असेंबली, सेनेट। ये एमसीक्यूज आता है, हाउ मेनी कंस्टिट्यूएंट या लॉ मेकिंग अथॉरिटी आर एट नेशनल लेवल। तो याद रखिएगा 3 अथॉरिटी है, सेनेट, नेशनल असेंबली जिसको पार्लियामेंट भी बोलते हैं, और प्रेसिडेंट। ये मेंबर पुराने लिखे हैं, मैंने ऊपर लिखे हैं, 237 नहीं है, 342 हैं, ऊपर मैंने लिखे हुए हैं सारे, ये पुराने वाले हैं। लॉ बनता कैसे? पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकते हैं। सिर्फ फर्क यह है कि कोई ऐसा लॉ वो नहीं बनाएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, हमारा आइन जो है वो 1973 है, उससे कन्फ्लिक्ट कर रहा हो, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएंगे। और दूसरा यानी आइन में है कि फीमेल सदर नहीं हो सकती। अब ये क्या है, किसी को फीमेल को सदर बनाते हैं, लॉ बनाते हैं कि हम सदर बनाएंगे फीमेल को, तो ये नहीं बना सकते। जब हाँ, अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं फिर अलग बात है। दूसरी बात यह है कि वो कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे कि आइंदा आने वाली गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बनाएगी, यानी हमने जो लॉ बना दिया वो फाइनल है, आइंदा कोई लॉ नहीं बनाएगा, ऐसा भी वो लॉ नहीं बना सकते। जी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन है, वो पहले बताया है कि एक हाउस लॉ बनाता है, दूसरे हाउस में भेजता है, दूसरा हाउस भी अगर पास कर देता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट ने 10 दिनों में साइन करना होता है, एक बार। दूसरा, अगर एक हाउस ने लॉ बनाया, दूसरे हाउस ने पास नहीं किया, तो फिर जॉइंट सिटिंग होगी। जॉइंट सिटिंग के बाद अगर वो बिल जाता है सदर के पास, सदर पास कर देते हैं तो भी पास हो जाएगा, या वो अमेंडमेंट कर देते हैं और ये अमेंडमेंट रिजेक्ट कर देते हैं तब भी जॉइंट सिटिंग होगी। और इसके अलावा अगर सदर के पास बिल जाता है और सदर ने अमेंडमेंट कर दी तब भी जॉइंट सिटिंग होगी। जॉइंट सिटिंग का मतलब है कि सेनेट और नेशनल असेंबली के मेंबर्स मिलकर बजाय वो डिसाइड करेंगे। दैट इज प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जब पार्लियामेंट बिजी हो या टाइम ना हो या मामला टेक्निकल नेचर का हो, तो वो लोअर बॉडीज को अथॉरिटी देते हैं लॉ बनाने की, दैट इज कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, जैसे किसी मिनिस्टर को, क्रिकेट बोर्ड को, इलेक्शन कमीशन को, किसी को अथॉरिटी दी लॉ बनाने की, दैट इज कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। फायदा ये होता है कि पार्लियामेंट का टाइम बच जाता है, जल्दी लॉ बन जाता है। ठीक है, और जिन्होंने बनाना है, जैसे टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, वो टेक्निकल मामला वही जानते हैं, या मेडिकल, तो वो उससे रेलिवेंट एक्सपर्ट भी हैं, तो वो आसानी से इसको बना लेंगे, ये एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत दफा वो लॉ बहुत ज्यादा बनाया जाता है, वो लोग सिविल सर्वेंट जो है यानी इलेक्टेड नहीं होते। ठीक, और यहाँ पे डेलीगेटेड, यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में बनाया जाता है जिसको अप टू डेट रखना मुश्किल होता है, और वो सिविल सर्वेंट बनाते हैं जो उनके एक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और इसको इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, एम्बिग्यूटीज हो रही है। तो ये डिसएडवांटेज है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ये आपका अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अगर 2 मिनट लेने हैं, इसको देखना है, पूछे, शाबाश। जी, ये प्रोसेस जैसे मैंने ऊपर बनाए थे कि बिल बना, जब भी बिल बनाते हैं, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1973
उसके तहत बनाए जाते हैं। अ बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस, किसी भी हाउस में कोई बिल बनाया जा सकता है, फिर वो दूसरे हाउस में भेजा जाएगा। दूसरा हाउस अगर अमेंड कर देता है, ठीक है, अगर तो पास कर देता है वेल एंड गुड, अमेंड कर देता है, रिजेक्ट कर देता है या 90 डेज में पास नहीं करता, तो फिर वो बिल वापस किया जाएगा उसको, और दूसरा हाउस फिर डिमांड करेगा कि जॉइंट सिटिंग की जाए। जब जॉइंट सिटिंग होगी तो उसमें रिजेक्ट हो गया तो खत्म हो गया, और अगर पास हो गया तो फिर सदर के पास जाएगा। सदर ने 10 दिन में साइन करना होते हैं। मनी बिल, हाँ एक चीज यहां पे ये अच्छी है, याद रखिएगा, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली बनाएगी। मनी बिल सिर्फ नेशनल असेंबली बनाएगी, इसमें सेनेट इन्वॉल्व नहीं होता। सेनेट को वैसे वो ये आपका एमसीक्यूज भी आता है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली जो है बनाएगी और सदर पास करेगा, सेनेट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ये आपका अच्छा एमसीक्यूज भी आता है। ऑर्डिनेंस, आपने अक्सर सुना होगा एक्ट और ऑर्डिनेंस। एक्ट जब नेशनल असेंबली और सेनेट मिलके कोई लॉ बनाते हैं और सदर के पास भेजते हैं, इसको हम एक्ट कहते हैं। लेकिन जब सदर कोई ऑर्डर जारी कर दे, उसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। When National Assembly is not in session and Parliament feels that a law in respect of any activity is urgently required। अच्छा याद रखिएगा, अगर मैटर कोई अर्जेंट है तो सदर जो है वो अभी, वैसे तो असेंबलीज को बुला के या सेनेट को बुला के वहां पे बिल पेश किया जाता है, लेकिन कोई इमरजेंसी हो या कोई ऐसा इश्यू हो तो सदर ऑर्डर जारी करेगा, और वो एज इट इज इफेक्टिव होगा जैसे कि एक्ट पास किया गया है। लेकिन ऑर्डिनेंस की बात याद रखिएगा कि वो 120 डेज तक वैलिड होता है। 120 डेज के बाद ये पेश करना होता है सेनेट और नेशनल असेंबली में। लेकिन अगर सिर्फ मनी बिल हो तो ऑर्डिनेंस मनी बिल से रिलेटेड हो तो वो नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा, और अदर देन मनी बिल हो तो दोनों हाउस में पास किया जाएगा। दोनों हाउस ने पास कर दिया तो वैलिड हो जाएगा, दोनों हाउस ने रिजेक्ट कर दिया तो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। जी बेटा 1 मिनट ले देखें, पूछे, शाबाश। जी बेटा नेक्स्ट हम शुरू करते हैं कंट्रैक्ट एक्ट 1872। कंट्रैक्ट एक्ट 1872 जब भी कंट्रैक्ट बनाते हैं तो सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि हम कुछ चीजें इग्नोर कर जाते हैं, हम डायरेक्ट कंट्रैक्ट पे चले जाते हैं। जब भी कंट्रैक्ट बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेप आता है, दैट इज ऑफर या प्रपोजल। ऑफर और प्रपोजल आमतौर पे एक ही चीज ली जाती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली जब प्रपोजल की बात करते हैं तो उसमें ऑलरेडी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाती है तो प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है तो एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तो कंट्रैक्ट बनता है। इट्स मीन हर कंट्रैक्ट एग्रीमेंट से आएगा। एवरी कंट्रैक्ट इज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट, सवाए एक के। ये याद रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे कि हर कंट्रैक्ट एग्रीमेंट से आता है, इट्स ओके। कौन से एग्रीमेंट से आता है?
वैलिड एग्रीमेंट से, सवाए एक के। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट से नहीं आता। आगे चल के हम पढ़ेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, आपका एमसीक्यूज भी आता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट का पार्ट नहीं होता, ठीक है। बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से आते हैं सवाए एक के। और कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं? जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? तो इसको हम पहले सोशल और लीगल में फर्क करते हैं। सोशल और लीगल, आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया या सालगिरह पे बुलाया या शादी पे बुलाया, ये सोशल एग्रीमेंट है, दैट इज सोशल एग्रीमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट किससे बनेगा? लीगल एग्रीमेंट से। हमारा कॉन्ट्रैक्ट किससे बनेगा? लीगल एग्रीमेंट से। लीगल एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहां पे सबसे अहम तीन चीज के फर्ज कर लें, ये जोहेब बेटा पास 3 जो है लैपटॉप हैं, 4 लैपटॉप हैं। एक इसने अपने किसी दोस्त नोमान को दिया, उसे पैसे नहीं दिए, ये सोशल में जाएगा। 3 जो है उसने बेचे हैं, ए बी सी, तीनों को 20-20 हजार के बेचे हैं। ए से लिखवाया नहीं दोस्ती में, बी से लिखवा लिया, सी को सबके सामने दिया। अब तीनों लीगल एग्रीमेंट है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कौन से बनेंगे? जिनसे लिखवाया या जिनको सबके सामने दिया। मीन जो आपने पिक करना है वो ये पिक करना है कि जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। हालांकि एक तो सोशल दिया, वो तो एग्रीमेंट ही नहीं बना, कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। 3 उन्होंने लीगल क्या एग्रीमेंट किए, 20-20 हजार का बेचा, लेकिन ए से लिखवाया नहीं है। हालांकि लीगल एग्रीमेंट था, 20 हजार का बेचा, लिखवाया नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अगर वो पैसे नहीं देते तो ये इन्फोर्स नहीं कर सकते। मकसद बताने का ये है, जैसे आप आम प्राइवेट लाइफ में किसी ने आपसे 20 हजार मांगे, आपने दे दिए, ठीक है, या उसको बोला ये 20 हजार लो फलां चीज ले आना, वो नहीं लाता, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो वो स्यू आप नहीं कर सकते। वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए 6 बातें याद रखिएगा। ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, साइन हो, ठीक है, साइन मीन इन्फोर्सेबिलिटी एविडेंस, पार्टीज कंपिटेंट हो, पागल वगैरह ना हो, ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, ठीक है, ये नहीं सर पे टीटी रखा हुआ है, या वाइड ना हो, एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर वाइड ना हो। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो वैलिड एग्रीमेंट कहलाएगा और वैलिड एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इज इट ओके? फिर है हमारे पास, हम बिगिनिंग से लेते हैं, शुरू से। कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे? ऑफर या प्रपोजल। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with the view to obtain the assent of that other to such act या abstinence is called proposal या offer। बेटा अगर किसी को कोई चीज समझ ना आ रही हो, डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other for such act या abstinence is called offer या proposal। अगर कहते हो कि भाई मैं 1000 में आपका घर पेंट कर देता हूं, ठीक है, ये एक्ट है, करने की बात है। या एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस मीन वो कहता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड बनता हूं, आपके घर की चौकीदारी करूंगा, ठीक है। तो एब्सटिनेंस का मतलब है वो गैर मुतल्लका शख्स को घर आने से रोकेगा, या पर्सनल पे भी आ सकता है। ऑफर या प्रपोजल, कोई चीज किसी को बेचने या खरीदने या उसके लिए कोई काम करने की बात करते हैं तो ऑफर कहलाती है। जो ऑफर करता है या प्रपोजल करता है उसको ऑफरर कहते हैं, जिसको करते हैं वो ऑफरी या प्रपोजी होता है। आपकी बुक में एसेंशियल्स और टाइप्स मिक्स हैं,
हम इनको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले ये 9+1 मैंने टाइप्स लिखी हुई है। सबसे पहले है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर दैट इज मेड टू अ लार्ज पब्लिक, दैट इज मेड टू अ लार्ज पब्लिक। बट वो लार्ज पब्लिक याद रखिएगा, आपके सामने आपकी आवाज सुन सकती हो, कहीं दूर है या दूसरे कमरे में है, वो लार्ज जनरल ऑफर नहीं कहलाएगी। जिनसे आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, वो सुन रहे हैं, 100 लोग हैं, 20 लोग हैं, जितने भी हैं, जलसा है, वो जनरल ऑफर कराएगी। लेकिन एक रूम में 50 बंदे बैठे हुए हैं, दूसरे रूम में भी बैठे हुए हैं, आपने जिस रूम में की है वो जनरल ऑफर कराएगी, दूसरे लोगों तक आपकी आवाज नहीं जा रही, जहां पे आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। दूसरे नंबर पर स्पेसिफिक ऑफर, किसी पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को आप ऑफर करते हैं तो स्पेसिफिक ऑफर कहलाती है। दोनों का फर्क क्लियर है? हाँ, अगर वो जनरल ऑफर 5-6 लोग हैं, वो पार्टनर हैं या डायरेक्टर हैं कि कंपनी के, उनको वो भाई बेशक 6-7 लोग हैं, लेकिन वो पार्टनर हैं या डायरेक्टर हैं कि कंपनी के, जैसे बाटा शू कंपनी है, आप उनको खाली ऑफर करते हो, वो 1 है या 10 है, वो स्पेसिफिक ऑफर होगी, क्योंकि उनका यूजेज 1 खरीदे या 10 खरीदे, यूजेज सबका सेम होगा। देखें जी, थर्ड नंबर पे है एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर दैट इज मेड रिटन, स्पोकन या वर्बल। एक्सप्रेस ऑफर दैट इज मेड रिटन, स्पोकन या वर्बल, और मेजॉरिटी ऑफर एक्सप्रेस ऑफर होती है। Whereas जब हम बात करेंगे इम्प्लाइड ऑफर रिटन, स्पोकन या वर्बल शेप में नहीं होती। इम्प्लाइड ऑफर रिटन, स्पोकन या वर्बल शेप में नहीं होती। दैट इज inferred from the act या conduct या circumstances, that inferred from the act या conduct या circumstances। जैसे आप दो बच्चे उतरे हैं स्टेशन पे, एक ने कुल्ली से भाव ताव किया और उसने सामान उठाया, ये एक्सप्रेस है। एक बच्चा खामोश खड़ा है, कुल्ली आया, उसने सामान उठाया, वो चल पड़े और आगे जाकर उसने सामान रख दिया, उस बच्चे ने पैसे दे दिए, ये इम्प्लाइड है। या दूसरी तरफ अनोशा और अफीफा ने यूनिवर्सिटी आना था, अनोशा ने बेकायदा रिक्शे वाले से भाव ताव किया, बातचीत की, फाइनल तय किया, ठीक, ये एक्सप्रेस है। अफीफा खड़ी है, गाड़ी आई है, उससे घर से नहीं बुलाया ना, गाड़ी रुकी है, ये बैठ गई है, आगे जाकर उतर गई अपने स्टॉप पे, ये इम्प्लाइड ऑफर है। एक्सप्रेस रिटन, स्पोकन, वर्बल शेप में होते हैं। इम्प्लाइड ऑफर दैट इज इन्फर्ड फ्रॉम द एक्ट या कंडक्ट या सर्कमस्टांसेस। ये क्लियर है तो ठीक बताए, नहीं तो मैं आगे चल। बी गुड।
ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर ये कंपनीज का इशू है, एक दफा ये कंपनीज का हुआ था। When two identical offer of same subject matter made by two different parties to each other in ignorance, not knowing each other offer of each other offer is called cross offer. ये पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। दो कंपनीज थी, उनके मैनेजर की बात थी। तो एक मैनेजर ने कहा कि हम अपनी कंपनी के शेयर बेचना चाहते हैं, दूसरे ने कहा कि हमारा इरादा भी है कुछ शेयर खरीदने का। सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई। कंपनी में जाके जिन्होंने कहा था हम बेचना चाहते हैं, उनको पता था कि वो कंपनी जो है खरीदना चाहती है, उनको ऑफर कर दी। और जो खरीदना चाहते थे उन्होंने भी ऑफर कर दी। हुआ ये कि जिन्होंने बेचने थे उनको बाद में कहीं और अच्छी ऑफर मिल गई, उन्होंने बेच दिए। इन्होंने क्लेम कर दिया कि हमारे साथ बात हुई थी। तो प्रॉब्लम यह हुआ कि दोनों ने ऑफर की थी, एक्सेप्टेंस किसी ने भी नहीं दी थी। तो ये क्रॉस ऑफर पड़ी, दोनों ने ऑफर कर दी, तो ये कंट्रैक्ट नहीं बनेगा। याद रखिएगा, ये केस स्टडी आती है, ये कंट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्रॉस ऑफर में दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को ऑफर कर दी है, ठीक, एक्सेप्टेंस किसी ने भी नहीं दी, ये क्रॉस ऑफर कहलाएगी। और दोनों पार्टीज ने ऑफर किया, एक्सेप्टेंस किसी ने भी नहीं की है। इज इट ओके बेटा? कोई बेटा बेटी जिसको समझ ना आ रही हो, आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब यह होता है कि जब आपको कोई ऑफर की गई है और आप भाव ताव करते हैं या कोई कंडीशन रखते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेंस में। जैसे मैंने जोएब को कहा मैं ये मोबाइल 20,000 का बेचना चाहता हूं, उसने कहा जी मैं 10 का खरीदूंगा। दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। फिर है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर वो ऑफर कहलाती है दैट इज ओपन या कंटिन्यूस इन नेचर। स्टैंडिंग ऑफर वो ऑफर दैट इज ओपन या कंटिन्यूस इन नेचर। या एनी ऑफर फॉर पब्लिक रिवार्ड इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। से फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आईसीएम वालों ने किया है कि जो बच्चा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लेगा उसकी फीस माफ हो जाएगी, ये स्टैंडिंग ऑफर है, ठीक है। जब भी कोई आप ऑफर वो रिवार्ड की सूरत में हो या कोई भी कंटिन्यूस इन नेचर रखते हैं, डिपेंड्स, तो ये स्टैंडिंग ऑफर कहलाएगी। या इसी का एक ऑफर है कि आपकी कोई चीज गुम हो गई है और आप कहते हो जो भी ढूंढ के लाएगा उसको 10,000 दूंगा, ये भी स्टैंडिंग ऑफर में जाएगी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है आपका कंडीशनल ऑफर। कंडीशनल ऑफर वो ऑफर कहलाती है कि जहां पे आप ऑफर के साथ ही कोई कंडीशन रख देते हैं। कंडीशनल ऑफर जो ऑफर के साथ ही कोई कंडीशन रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल ऑफर। जैसे फर्ज किया मैं जोएब को बोलता हूं जोएब कि मैं आपकी नई बाइक खरीदूंगा अगर आप पुरानी बाइक बेचें तो, ठीक है, ये कंडीशन रखी है। नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन वो सिचुएशन होती है जब आप खुद से कोई सिचुएशन जो है वो रख देते हैं और उसको अज्यूम कर लेते हैं। जैसे जोएब किसी को कहते हैं कि मैं आपकी गाड़ी 5 लाख में खरीदना चाहता हूं, अगर आप वो गाड़ी, यानी अगर आपने संडे तक रिप्लाई ना किया तो मैं इसको हाँ समझूंगा, तो ये, और गाड़ी लेने चले गए, ये नेगेटिव कंफर्मेशन होती है। आप 1 मिनट लें, इसको पढ़ें, पूछें। अच्छा, अभी ऐसे है कि आप 5 मिनट ब्रेक करें, 5 मिनट के बाद आते हैं तो मैं कुछ एमसीक्यूज पूछूंगा आपसे। वो एमसीक्यूज जो आपको फाइनल में बहुत हेल्प करेंगे। तो फिर साथ ये भी चलाएंगे, ये भी शुरू करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज थोड़े से पूछूंगा। 5 मिनट ब्रेक ले लें, 5-6 मिनट, और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इज इट ओके बेटा?
5-6 मिनट ब्रेक लें, फिर वापस आके मैं कुछ एमसीक्यूज पूछूंगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे।
जी बेटा, मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो आपके फाइनल में अच्छे एमसीक्यूज आते हैं। उसमें सबसे पहला एमसीक्यूज है, लॉ कंट्रोल विच टाइप ऑफ बिहेवियर, इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ, none of above. Law control which type of behavior, internal, external, both, none of above. याद रखिएगा, इसका मकसद समझिएगा। लॉ आपका कौन सा बिहेवियर कंट्रोल करेगा? सबसे पहली बात, आप जी बेटा, क्वेश्चन एक्सटर्नल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लॉ आपका बिहेवियर, एक्सटर्नल बिहेवियर जो है, शाबाश, ग्रेट अफीफा, ग्रेट। अच्छा, ये एमसीक्यूज है। फिर एमसीक्यूज है, प्रेसिडेंट इज सिलेक्टेड फॉर 5 years। प्रेसिडेंट इज सिलेक्टेड फॉर 5 years। कितने टाइम के लिए, कितनी दफा आ सकता है? 2, 3, अनलिमिटेड। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर, यस, शाबाश, क्वेश्चन आया है 2, यस, 2 times। Who is the head of state? Who is the head of state? President. Then who is, नहीं, अवैस नहीं, head of state prime minister नहीं होता, president होता है। Who is head of government? Prime minister. Yes, great great great। अच्छा, गवर्नर, हमने वो वहां लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लॉ मेकिंग अथॉरिटी में गवर्नर भी जो है। प्रोविंस का हेड कौन होता है? प्रोविंस का गवर्नर। गवर्नर जो है वो फेडरल जो है सदर अपॉइंट करता है। अच्छा, ये बताएं कि सदर ना हो तो कौन साइन करेगा? सदर ना हो तो कौन साइन करेगा? चेयरमैन सेनेट, शाबाश शाबाश। और अगर चेयरमैन सेनेट भी ना हो तो फिर कौन साइन करेगा? स्पीकर नेशनल असेंबली। ये एमसीक्यूज आता है, बच्चे डंप हो जाते हैं। अगर ये दोनों ना हो तो फिर कौन साइन करेगा? स्पीकर नेशनल असेंबली। क्लियर है? सदर ना हो तो साइन चेयरमैन सेनेट करेगा। कायम मकाम सदर भी चेयरमैन सेनेट को कहते हैं। और सदर ना हो तो फिर सदर ना हो तो चेयरमैन सेनेट साइन करेगा। वो भी ना हो तो थर्ड अथॉरिटी कौन है? स्पीकर नेशनल असेंबली। इज इट ओके? अच्छा, व्हाट इज अनदर नेम फॉर प्राइम मिनिस्टर? चीफ एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव। सदर के नाम से अथॉरिटी कौन यूज करता है? प्राइम मिनिस्टर। सदर को एडवाइस कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट। एमसीक्यूज जो बोल रहा हूं क्लियर हैं बेटा? आसिफ या दूसरे बच्चे अवैस? ओके ओके। अच्छा, इसी तरह फिर 2-3 एमसीक्यूज हैं मेरे पास, मैं यहां पे लेके चलता हूं साथ। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
ये MCQs पर है। The president is head of the state and is elected for 5-year term by Senate, National Assembly and member of Provincial Assembly. G. D. Shabash. D. Senate, National Assembly and member of Provincial Assembly. In criminal cases, what is the normal burden of proof placed upon prosecution? Beyond any doubt, beyond all reasonable doubts, beyond any reasonable doubts, balance of probability. C. नहीं, C नहीं, B. Beyond all reasonable doubt. Criminal case में beyond all reasonable doubt आएगा. अच्छा, MCQ number 3 पे आइएगा. In case of Talal versus Kashif, where a case is brought to the civil court by Mr. Talal, who is filing a suit against Mr. Kashif, state the legal position. Talal is plaintiff and Kashif is defendant. Talal is defendant and Kashif is plaintiff. Talal is accused and Kashif is complainant. G. A. Shabash. A. Talal is plaintiff. जब भी सिविल केस आएगा तो प्लेंटिफ आएगा. अगर यहां पे लिखा जाता इन क्रिमिनल केस, फिर क्या होता? Talal is complainant and Kashif is accused. जो चीज समझाना चाह रहा हूं समझ आ रही है बेटा? ये अवैस PLA क्या लिखा है? प्लेंटिफ का मतलब ये होता है, अवैस आपने गाड़ी बेची है जोएब को और जोएब पैसे नहीं दे रहा, तो आप प्लेंटिफ हो और जोएब जो है वो डिफेंडेंट है. प्लेंटिफ वो शख्स जिसका हक मारा जाता है या वो चीज नहीं मिलती. समझ आई? दोबारा समझाऊं? ओके. अच्छा, क्रिमिनल लॉ एम्स टू पेनलाइज रॉन्ग डूअर. मैं शॉर्ट कर रहा हूं. क्रिमिनल लॉ एम्स टू पेनलाइज रॉन्ग डूअर. डी. यस. अच्छा, those rules and principles that governs and regulate social conduct and observance of which can be enforced in court of law is known as. जी. law, rules, policies क्या आएगा? A. आसिफ. great. Property disputes, work related disputes, copy disputes and claim by consumer against manufacturer are example of. D. great. civil law. Person found guilty of crime is the plaintiff, respondent, convict, defendant. Yes, C. Pakistan has a federal parliamentary system of government. The federal legislature is bicameral Majlis-e-Shura, parliament composed of president, governor and prime minister, president, national assembly and provincial assembly, president, national assembly and senate, president, prime minister and national assembly. C. Shabash. C. Yes. Great. C. Prime Minister is assisted by federal cabinet, a council of ministers whose members are appointed by the president on the advice of chief justice, governor, attorney general, prime minister. Yes. Great. If ordinance is not presented or passed by National Assembly in case of money bill and by both houses, if it is other than money bill, it shall stand appeal after
120 days, 90 days, 60 days, 100 days. नहीं अवैस नहीं. A 120 days. A 120 days better. All statutes passed by National Assembly are also approved by Senate before proceeding to the President for his assent, with the exception of G. Money bill. Shabash, shabash. The Senate is permanent law-making body. Money bill. Shabash. Senate is permanent law-making legislative body with equal representation from each of 4 provinces, with representative elected by member of their respective Chief Minister, Governor, High Court, Provisional Assembly. नहीं बेटा. D, Provisional Assembly. D. A money bill shall originate in the National Assembly. After the amendment passed by National Assembly, it shall, without being transmitted to the Senate, be presented to President of Pakistan, Chief Justice. G. A. Shabash. Good. President may return a bill for recommendation by या reconsideration by National Assembly only, Senate only, National Assembly and Senate are independent. G. नहीं अफीफा. D. D. Which of the following is not an advantage of having delegated legislation? Flexibility with which law is made, involvement of expert in lawmaking, time saving of the parliament, bulk and extension volume. D. Yes. ज़हीन बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. चलिए अब दोबारा पढ़ते हैं, फिर आकर मैं फिर यस. अब वो वापस आते हैं, पढ़ते हैं जो पढ़ रहे थे आफर, फिर एमसीक्यूज शुरू करेंगे. जी ये टाइप्स ऑफ ऑफर सारी क्लियर हो गई. कोई बच्चा जिसको डाउट? नेक्स्ट आइएगा एसेंशियल ऑफ ऑफर. एसेंशियल ऑफ ऑफर मींस यहां पे ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस. जब भी आप ऑफर करेंगे तो आपका मकसद उसका एक्सेप्टेंस लेना है, जोक नहीं है, मजाक नहीं है. ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशन, सोशल रिलेशन नहीं. आप किसी को शादी पे बुलाते हो, ये सोशल रिलेशन है. ठीक है, आप जब कंटेक्ट बनाना है तो लीगल रिलेशन क्रिएट करते हैं. ऑफर मस्ट बी डेफिनाइट, अनएम्बिगस एंड सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ बीइंग मेड. ठीक है, लूज या वेग या एम्बिगस, शक वाली नहीं होनी चाहिए. ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन या इन्विटेशन टू ऑफर. आप कहते हो मेरा इरादा है बाइक बेचने का, ये ऑफर नहीं है. Ordinary social invitation is not an offer in the eyes of law. किसी को सालगिरह पे बुलाते हो या सोशल इनविटेशन करते हो, वो लॉ की नजर में ऑफर नहीं होती. ऑफर मेड बाय पर्सन अंडर स्ट्रेस इमोशन. अच्छा ये छोड़ दो, ये अब खत्म हो गया. ये 7 ठीक है. मार्क्ड प्राइसेस ऑन आर्टिकल इन अ शॉप डू नॉट कंस्टिट्यूट ऑफर. शॉप में चीजें लटकी हुई हैं, प्राइस लिखी हुई है, तो वो इनविटेशन टू ऑफर कंसिडर होती है. हाँ, आप उनके पास जब बोलते हो ये चीज खरीदनी है, वो आप कहते हैं ठीक है, तो फिर ये ऑफर कराएगी. अगर प्राइस लिखी हुई है, वो नहीं देना चाहते, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो ऑफर है, वो इन्विटेशन टू ऑफर कंसिडर होता है. ऑफर डज नॉट कम्युनिकेटेड टू ऑफर इज नो ऑफर. आपका इरादा है किसी को कोई बेचने का,
या उसको कोई ऑफर करने का, लेकिन उसको कम्युनिकेट नहीं किया, ऑफर नहीं कहलाएगी। ऑफर मस्ट बी सर्टेन द टर्म्स ऑन व्हिच ऑफर इज विलिंग टू एक्ट। ये भी सिंपल है। हाँ, ये 10वां फिर ठीक है। ऑफर मस्ट बी समथिंग इन नेचर ऑफ रिक्वेस्ट, नॉट एन ऑर्डर। ये नहीं कि ये चीज खरीदो वरना, रिक्वेस्ट होगी, नेचर ऑफ रिक्वेस्ट होगी। बी क्विक, इसमें देखें कोई एसेंशियल में पूछना है बेटा? ओके ओके। अब है रिवोकेशन या लैप्स ऑफ ऑफर। 8 पॉइंट है, आपको ये याद हो तो अच्छा है। रिवोकेशन या लैप्स ऑफ ऑफर, उसमें सबसे पहले है एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट, टाइम खत्म हो गया, ऑफर लैप्स कर जाएगी। डेथ या इंसेंटी ऑफ ऑफर या ऑफरी, ये 4 in 1 है। डेथ ऑफ ऑफर, डेथ ऑफ ऑफरी, इंसेंटी ऑफ ऑफर, इंसेंटी ऑफ ऑफरी। लेकिन याद रखिएगा इसमें एक चीज कि अगर वो डेथ अगर ऑफर की हुई है और ऑफरी को नहीं पता था और वो कंट्रैक्ट जनरल नेचर का हो तो वो बाइंड हो जाएगा। जैसे नवाज ने अवैस को कहा मैं चीनी जो है आपसे जो बेचना चाहता हूं इस तरह किलो या खरीदना चाहता हूं, तो अगर उसके ऑफर की डेथ हो गई तो चीनी एक नॉर्मल चीज है, उसके लीगल रैप्स भी कंट्रैक्ट पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने कहा था मैं पेंट करूंगा या कोई गाना गाऊंगा, वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है बाय सब्सीक्वेंट इल्लीगैलिटी, ये चीज बहुत फोकस कीजिएगा, ठीक है। बाय सब्सीक्वेंट इल्लीगैलिटी मीन चेंज या प्रोहिबिशन बाय लॉ। जब भी कोई ऑफर आपने की, लॉ चेंज हो गया, वो ऑफर है तो ऑफर खत्म हो जाएगी, और अगर कंट्रैक्ट है तो कंट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। बाय सब्सीक्वेंट इल्लीगैलिटी, जब पहले लीगल था, लॉ ने मना नहीं किया था, अब लॉ ने मना कर दिया, अब वो ऑफर है तो ऑफर खत्म हो जाएगी, और कंट्रैक्ट है तो कंट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। जैसे शादी हॉल बुक करवाया, कोरोना आ गया, लॉ ने मना कर दिया कि शादी हॉल नहीं खुलेंगे, वो ऑफर है तो ऑफर खत्म हो जाएगी, और कंट्रैक्ट है तो कंट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉन एक्सेप्टेंस इन प्रेस्क्राइब मैनर। ये वो सिचुएशन होती है कि जब जय ऑफर ने कहा था कि जय एक्सेप्टेंस करनी है तो जो मैनर में लिख के दे रहा हूं, यानी लिख के दें या सैंपल दिखाएं या कोई ऐसा वो चीज मैनर बताए थे, आपने वो मैनर अडॉप्ट नहीं किए तो ऑफर लैप्स कर जाएगी। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑफर इज लैप्स व्हेन द कंडीशन अटैच इज नॉट एक्सेप्टेड। जब आपने कहा कि मैं आपकी नई बाइक खरीदना चाहता हूं जी, बच्चे क्वेश्चन सर प्लीज एक्सप्लेन डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन केस ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ। बेटा ये वो सिचुएशन होती है फ्रस्ट्रेशन, ये भी हमने आगे पढ़ना है, ये डैमेजेस में डिस्चार्ज में जाएंगे तो वहां पे होगा। तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया, या कोई ये फ्रस्ट्रेशन तब आती है कि जब कंटेक्ट किया था वो नॉर्मल था, लेकिन बाद में कोई इश्यू हो गया, जंग छिड़ गई, ठीक है, या इनकैपेसिटेटेड हो गए। वो 5 कंडीशन है, वो वहां जब हम जाएंगे डिस्चार्ज ऑफ कंटेक्ट में तो आपको अच्छा हो। ये वहां चल के जब डिस्चार्ज ऑफ कंटेक्ट में जाएंगे तो ये वहां 5 कंडीशन है बेटा आसिफ। क्लियर है बेटा आसिफ? ये नहीं, वैसे इतना बता देता हूं कि पर्सनल नेचर का जो कंट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो मेरा कंट्रैक्ट मेरे लीगल ऐप नहीं पूरा कर सकते, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है भाई काउंटर ऑफर। जब आप काउंटर ऑफर करेंगे
तो भी कंट्रैक्ट क्या है वो ऑफर रिवोक हो जाएगी। लेकिन अगर कोई टर्म कंडीशन काउंटर ऑफर वाली थी, अगली पार्टी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो फिर कंट्रैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट है भाई नोटिस ऑफ रिवोकेशन। आपने जो ऑफर की थी वो रिवोक कर रहे हो, लेकिन आपको नोटिस देना होगा, और नोटिस में याद रखिएगा कि अगर उसने एक्सेप्टेंस नहीं की तो, एक्सेप्टेंस कर दी तो फिर वो रिवोक नहीं हो सकती। और लास्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। वो जिस चीज की ऑफर थी वो ही डिस्ट्रॉय हो गया। ये 8 कंडीशन है, ये आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। 2 में 1 मिनट लें, पढ़े, पूछे, शाबाश। Should we move forward? अच्छा, नेक्स्ट है मोड ऑफ रिजेक्शन ऑफ ऑफर। एक तो ये एक्सप्रेस रिजेक्शन, आपने डायरेक्ट मना कर दिया कि भाई नहीं चाहिए। दूसरा इम्प्लाइड रिजेक्शन। इम्प्लाइड रिजेक्शन में या आप काउंटर ऑफर करते हो, भाव दाव करते हो, या कोई कंडीशन रख देते हो। तो ये इम्प्लाइड, एक डायरेक्ट मना कर दिया, एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में इम्प्लाइड रिजेक्शन कंसिडर होती है जब आपको किसी ने कहा कि मोबाइल 20,000 का बेचना चाहता हूं, एक तो आप डायरेक्ट मना कर देते हो कि नहीं चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि आप कहते हो 20 का, उसने 20 का कहा, आप कहते हो मैं 10 का खरीदूंगा, या मेरा पुराना मोबाइल खरीदो। तो ठीक है, तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस या काउंटर ऑफर की सूरत में इंप्लाइड रिजेक्शन कहलाती है। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को हम कहते हैं कंसेंसस एड इडम। दैट इज when the person to whom offer या proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। जो आपको कहा गया, आपने इसको एक्सेप्ट कर कहा कि ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस कहलाएगी। या दूसरा इसको बोलते हैं मीटिंग ऑफ द माइंड ऑफ द पार्टीज टुवर्ड द सब्जेक्ट मैटर इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। जो पार्टी कह रही है, अगले उसको एज इट इज समझ रही है। ये अगर एज इट इज नहीं समझ रही तो फिर ये मिस्टेक में चला जाएगा। कोई डाउट? अब एक्सेप्टेंस के रूल्स हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय द ऑफर। अगर कोई ऑफर ने मैनर दिया था तो उस हिसाब से होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल इट्स टर्म्स। जब आपने एक्सेप्टेंस की तो इट्स मीन सारी टर्म्स कंडीशन आपने एक्सेप्ट की। एक्सेप्टेंस ऑफ रिफ्यूज प्रपोजल इज नो एक्सेप्टेंस अनलेस रिन्यूड। आपने एक दफा रिफ्यूज कर दिया या काउंटर ऑफर कर दी, अब आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते जब तक कि वो ऑफर दोबारा आपको ऑफर ना करे। रिक्वायर्ड एक्ट डन, इस पे फोकस कीजिएगा। 4 पे, रिक्वायर्ड एक्ट डन इन इग्नोरेंस इज नो एक्सेप्टेंस। याद रखिएगा, ये आपकी केस स्टडी बहुत आती है। जोहेब का डॉगी गुम हो गया, बहुत उसने कीमती डॉगी था, तो उसने एडवर्टाइज किया कि जो भी मेरा डॉगी ढूंढ के लाएगा उसको 10,000 दूंगा। आसिफ को नहीं पता था इनाम रखा हुआ है। आसिफ ने वो स्टेटस देखा हुआ था जोएब के साथ, तो उसने डॉगी जो है जोएब के घर पहुंचा आया। बाद में पता चला कि इस पे इनाम है, अब वो क्लेम नहीं कर सकता। रिक्वायर्ड एक्ट डन इन इग्नोरेंस इज नो एक्सेप्टेंस। जब आपने एक्सेप्टेंस ही नहीं की तो फिर आप रिवार्ड के लिए या पेमेंट के लिए स्यू नहीं कर सकते। फिर है 5, मेयर इंटेंशन टू एक्सेप्ट अ प्रपोजल इज नो एक्सेप्टेंस। आपको किसी ने ऑफर की, आपका इरादा है उसको एक्सेप्ट करने का, लेकिन गलती क्या हुई, 7 पे आइएगा।
एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर, आपने कम्युनिकेट नहीं किया, इंटेंशन तो थी लेकिन गलती क्या हुई, कम्युनिकेट नहीं किया, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी, कम्युनिकेट करना चाहिए। 6 है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मुकम्मल या कोई उसमें गैर मशरूत होनी चाहिए, ये भी सिंपल है। 8 एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू फुलफिल प्रॉमिस, आप जो है आपका इरादा अगर नहीं है, जस्ट इसको प्रॉमिस कर रहे हो, इरादा नहीं है, तो ये फ्रॉड में जाएगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर लैप्स या विथड्रॉन, इससे पहले को टाइम खत्म हो जाए उससे पहले आप एक्सेप्टेंस देंगे। सम एक्ट मस्ट बी शोन या कंसिडर या प्रोवाइडेड, कोई टोकन मनी, कोई एडवांस, कोई बयाना, कोई अंगूठी, कोई चीज पर देंगे ताकि कंसेप्ट जो है कंफर्म हो कि एक्सेप्टेंस हो गई। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर, जिसको ऑफर हुई ही नहीं है वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। और लास्ट है एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस, अगर किसी को आपने ऑफर किया है वो खामोश हो गया है तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी। ये क्लियर है? जी, अब शुरू करते हैं कंट्रैक्ट एंड इट्स टाइप्स। व्हाट इज अ कंट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट दैट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कंट्रैक्ट। A contract is an agreement creating and defining obligation between the parties. यानी जब एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो कंट्रैक्ट कहलाएगा, जो मैंने पहले बताया है। अब इसके जो है एसेंशियल हैं वो यहाँ पे बहुत लेंथी लिखे हुए, मैंने 6 बातें बताई थी। एसेंशियल ऑफ वैलिड कंट्रैक्ट, ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, ये एक लाइन में याद रखिएगा, इन्फोर्सेबिलिटी हो, लीगल ऑब्लिगेशंस हो, लॉफुल कंस्टेशन हो, पार्टीज कंपिटेंट हो, पागल वगैरह ना हो, ये 6 बातें, कॉन्सेंट फ्री हो, ट्रीटिस नहीं रखा हुआ, और ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, और एक्सप्रेस राइटिंग रजिस्ट्रेशन हो अगर जरूरी है तो, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स कंडीशन, सारे टर्म्स जो है ये एसेंशियल्स में आते हैं, इनका हल्का कंसेप्ट रखिएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस जो है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो, ये नहीं कि आप कहते हो जादू से ये चीज कवर कर देता हूं, ये एसेंशियल एक हल्का सा कंसेप्ट रखिएगा। हमारा जो मेन एसेंशियल नॉर्मल रखिएगा, मैं फिर कहता हूं कि इसमें हल्का हल्का कंसेप्ट, यानी ऑफर, एक्सेप्टेंस, ऑब्जेक्ट लॉफुल, राइटिंग और रजिस्ट्रेशन अगर जरूरी है, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, ये एसेंशियल्स है। आपका जो शुरू होगा वो एक ये है काइंड ऑफ कंट्रैक्ट, और एक आखिर में इसी चैप्टर, ये पहला चैप्टर आपके लिए बहुत जरूरी है, फर्स्ट चैप्टर आपके लिए बहुत जरूरी है, इसमें एक क्वेश्चन आपका लाजमी आएगा। जी बेटा, क्वेश्चन आया है, सर इज इट कंपल्सरी टू मेमोराइज सेक्शन? नहीं, सेक्शन नंबर आप याद नहीं करेंगे, ये आप लॉयर नहीं बन रहे, बल्कि लॉयर बनने के लिए भी सेक्शन नंबर जरूरी नहीं होता, सेक्शन जरूरी नहीं है।
आपको एसेंशियल या उसका मटेरियल या रूल्स है वो याद होने चाहिए, सेक्शन नंबर आपका याद करना काम नहीं है। इज इट ओके? जी, सेक्शन और नंबर याद नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि जैसे ये काइंड ऑफ कंट्रैक्ट है, इसके 4 पार्ट्स हैं। ये आपको जैसे सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी। काइंड ऑफ कंट्रैक्ट के कितने पार्ट्स हैं? 4 कैटेगरीज है, 4। नंबर 1 है वैलिडिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी। नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ कंट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, और नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू पार्टीज। तो सबसे पहले ये 4 मेन बातें याद हो, 4 कैटेगरीज आपको याद हो। यहां से आपका एक अच्छा कंसेप्ट, यानी आपको जो ही क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रैक्ट आए तो फौरन पिक करना। इस पहले चैप्टर में आपके 2 मतलब अच्छे क्वेश्चन 5-6 बनते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। तो 4 कैटेगरीज के, अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू जो है फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू पार्टीज। तो अकॉर्डिंग ये 4 कैटेगरीज है। अब हर कैटेगरीज के फर्दर पार्ट्स हैं। अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी के फिर 5 पार्ट्स हैं। उसमें सबसे पहले है वैलिड कंट्रैक्ट। वैलिड कंट्रैक्ट मीन जो सारी 6-7-8 ऑब्लिगेशन सारी पूरी करते हो, ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, इन्फोर्सेबिलिटी हो, राइटिंग या रजिस्ट्रेशन हो, लीगली पॉसिबल हो, ठीक है, पार्टी कंपिटेंट हो, ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, ठीक। तो ये सारी चीजें होंगी तो वैलिड कंट्रैक्ट बनेगा। और ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज के दोनों पार्टीज को वो कंट्रैक्ट पर पूरा करना होता है। इज इट ओके? सेकंड वन है वाइड कंट्रैक्ट। अब वाइड कंट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट, इसका कंपैरिजन आता है। वाइड एग्रीमेंट की जब हम बात करेंगे तो वो एग्रीमेंट जो शुरू से ही वाइड है, जिनकी शुरू से ही कोई अहमियत नहीं है, वो वाइड एग्रीमेंट कहलाएंगे। जैसे आप कहते हो कि डॉगी डेड हो गया है, या कैटो डेड होगी, इसमें जान डाल दो, या जादू से पैसे डबल कर दो, या माइनर से एग्रीमेंट, या पागल से एग्रीमेंट, वो वाइड एग्रीमेंट कहलाएंगे। दोनों में जो मेन चीज पिक करनी है वो ये है कि वाइड एग्रीमेंट शुरू से ही वाइड होते हैं एज कंपेयर टू वाइड कंट्रैक्ट। वाइड कंट्रैक्ट इनिशियली वैलिड होते हैं, बट ड्यू टू सब्सीक्वेंट सर्कमस्टांसेस वो वाइड हो जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, वाइड एग्रीमेंट शुरू से ही वाइड होते हैं, माइनर से, पागल से, या कोई ऐसा जो पॉसिबल नहीं है, या वो जो है कुछ चीज डेड होगी इसमें जान डालना, ये सारे वाइड एग्रीमेंट है। वेयर एज वाइड कंट्रैक्ट जब भी बोलेंगे इनिशियली वैलिड थे, बट ड्यू टू सब्सीक्वेंट सर्कमस्टांसेस वाइड हो गए। और वो सब्सीक्वेंट सर्कमस्टांसेस ये 4 हैं, 5 बनते हैं लेकिन 4 कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस या डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। A contract become void due to impossibility of performance। अब ये जो आप डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पूछे थे, किसी बच्चे ने पूछा था, वो यहां भी आता है। A contract become void before performance when it become impossible to perform by any party due to any reason। यहाँ पे A agree to sell his house to B after 2 days, the house is burned next day, the contract become void। ठीक है। दूसरा subsequent illegality, लॉ चेंज हो गया। आपने गंदम पंजाब से खरीदी थी, गंदम कंट्रैक्ट हो गया लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। जब भी सब्सीक्वेंट इलीगैलिटी आएगी तो मीन चेंज ऑफ लॉ, और जब लॉ इन्वॉल्व हो जाएगा, वो ऑफर है तो ऑफर खत्म हो जाएगी, कंट्रैक्ट है तो कंट्रैक्ट खत्म हो जाएगा।
जी बेटा, ये क्लियर है पहली दो बातें? ओके। थर्ड वन है रिजेक्शन ऑफ वाइड एबल कंट्रैक्ट। जब वाइड एबल कंट्रैक्ट में 5 एलिमेंट्स होते हैं। जब आप फ्रॉड, कोएर्शन, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन और अनडू इन्फ्लुएंस, जब आपने किसी ने आपके सर पे टीटी रखा और साइन करवा लिए, बाद में इसमें कोर्ट ने अपील की, कोर्ट जो है उसके हक में फैसला दे दिया, तो अब वो वाइड एबल रिजेक्ट हो जाएगा और वाइड एबल से वाइड चला जाएगा। इज इट ओके? बाय मिस्टेक दोनों अगर दोनों पार्टी की मिस्टेक है फिर वाइड होगा। और दूसरी बात ये भी बता दूं, आपने कंट्रैक्ट लिखा है, वो एग्रीमेंट होगा, वो कंट्रैक्ट बना ही नहीं है। ये एमसीक्यूज भी आता है, ये जब ये खत्म होगा ना चैप्टर, तो इसके एंड पे एमसीक्यूज जिस तरह आज वो किया है ना फर्स्ट चैप्टर के, इसी तरह इसके भी करेंगे कल, होपफुली इंशाल्लाह करेंगे। दूसरे बच्चों को भी बताइएगा ताकि ज्यादा बच्चों को फायदा हो जाए। तो ये बाय मिस्टेक जो होगा वो वाइड कंट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, वो वाइड वो एग्रीमेंट है। अच्छा, फोर्थ नंबर पे है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट क्या है कि जब कोई मेन कंट्रैक्ट है और उसके साथ डिपेंडेंट इवेंट था, जिसके हैपनिंग या नॉन हैपनिंग की सूरत में वो कंट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरी आसिफ बेटे से बात हुई कि चीनी चाहिए, उन्होंने कहा मिल जाएगी 100 रुपए किलो। मैंने कहा 10 मन दे दो, उन्होंने कहा ठीक है। जहाज ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, अगर वो खैरियत से पहुंच गया, बदकिस्मती जहाज रास्ते में डूब गया। अब ये वैलिड कंट्रैक्ट था चीनी का, लेकिन कोलैटरल जो एटम था, एलिमेंट था, वो जहाज के खरीद से पहुंचने का था, तो वो अब कंट्रैक्ट जो है वाइड हो जाएगा। तो 4 बातें कि आपसे, यानी इस चैप्टर में आपके इतने क्वेश्चन हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले एसेंशियल है, फिर क्लासिफिकेशन है, फिर ये 4 कंडीशन जहां पे कंट्रैक्ट वाइड हो जाता है, 4 कैटेगरीज हैं, फिर इनका डिफरेंसेस हैं, आखिर में डिफरेंसेस दिए हुए हैं। तो ये पहला चैप्टर आपका बहुत अहम तरीन चैप्टर है। अच्छा, ये है वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट मैंने बताया था कि शुरू से ही वाइड ए बी इनिशो, ये भी एग्रीमेंट जो है आता है किसी पागल से, माइनर से। ठीक है, आपने एग्रीमेंट कर लिया है तो ये वाइड एग्रीमेंट कराएगा। आप मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप पिक करें। ये अवैस हैं, इनका जो है फर्ज कर लें निकाह हो गया है, अभी रुखसती नहीं हुई। अवैस है, इनका निकाह हो गया, रुखसती नहीं हुई। ये वाइफ से कहते हैं कि हम हनीमून बनाने चांद, घोड़े पे बैठ के चांद पे जाएंगे। ये वैलिड है? नहीं है, ये वाइड एग्रीमेंट है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि अब भी रुखसती नहीं हुई। इन्होंने एक दिन ऐसे कि देखा वो किसी और के साथ आइसक्रीम खा रही हैं, ये मेंटली तवाज़ुन खो बैठे, दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब ये ठीक नहीं हो सकते। ये क्या होगा? वाइड एग्रीमेंट होगा, वाइड कंट्रैक्ट होगा?
रो बाद में लेना है, पहले ये बताओ ये क्या होगा, वाइड एग्रीमेंट होगा या वाइड कंट्रैक्ट होगा? वाइड कंट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन अब इसके वो पर्सनल इनकैपेसिटी की वजह से वाइड हो गया। तो ये चार जो कंडीशन है उसमें ये वाली नहीं दी हुई, आप पर्सन इनकैपेसिटेटेड भी कर सकते हो, पर्सन इनकैपेसिटेटेड भी कर सकते हो। ठीक है, आसिफ ने किसी से कांटेक्ट किया कि वो उसके घर पेंट करेगा। अब हुआ ये वैलिड कांटेक्ट है, लेकिन आसिफ को किसी ने फूल मारा और उसकी बिनाई पे फर्क आ गया, फूल गमले में था। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, पर्सन इनकैपेसिटेटेड। समझ आई? समझाना चाह रहा हूं आसिफ। आसिफ बेटे समझ आई नहीं आई? आसिफ को ये बात पसंद नहीं आई फूल वाली। अच्छा, नेक्स्ट, वाइड एबल कंटेक्ट। वाइड एबल कंटेक्ट मीन्स कि ये आगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं। ये है कोएर्जन, अनइन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड। ठीक है, ये मेन 4 है, मिस्टेक भी साथ मिलाते हैं, लेकिन मेन ये 4 है जिसकी वजह से जब पार्टी की कॉन्सेंट फ्री ना हो, बाद में वो कोर्ट में स्यू करता है, कोर्ट उसके हक में फैसला दे देता है, तो वो वाइड एबल कंटेक्ट वाइड हो जाता है। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज, ये वाइड कंट्रैक्ट में, ठीक है, वाइड एबल में ये 5 एलिमेंट्स हैं। इनिशियली ये वैलिड होता है, इट इज अ वैलिड कंट्रैक्ट फॉर बोथ द पार्टीज इफ इट इज नॉट रिजेक्टेड बाय द पार्टी हैविंग राइट टू रिजेक्ट। एक बात, द लॉ गिव्स एन ऑप्शन टू वन ऑफ द पार्टीज टू अवॉइड इट। जिसकी कॉन्सेंट फ्री नहीं थी उसको लॉ ऑप्शन देता है, वो अवॉइड कर सकता है। The party entitled to cancel the contract is not bound to cancel. If he confirms it, other party remain bound to perform. The aggrieved party can get damages from the other party. उससे दूसरे से नुकसान damages तो claim कर सकता है अगर वो चाहे। अच्छा, if one party has received some benefit, he must return it to the other. अगर कुछ benefit लिए हैं वो वापस करना होंगे। इसमें पूछे जो अगर समझ नहीं आए तो मैं आसान अल्फाज में समझा देता। बी क्विक बेटे, शाबाश। ओके, इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट जो ये स्मगलिंग वगैरह, बच्चे अगवा करने, ये सारा इलीगल एग्रीमेंट में जाएगा। इज इट ओके? अब है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। पहला था अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी के 4-5 पॉइंट थे, वैलिड एग्रीमेंट, वाइड एग्रीमेंट, वाइड कंट्रैक्ट, वैलिड कंट्रैक्ट, इलीगल, ये सारे हमने अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी में पढ़ा। दूसरे नंबर पे है अकॉर्डिंग टू, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि काइंड ऑफ कंट्रैक्ट में 4 चीजें याद होनी चाहिए, 4 कैटेगरीज। नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी, दूसरे नंबर पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, तीसरे नंबर पे है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, और चौथा उसी का पार्ट है अकॉर्डिंग टू पार्टीज। तो पहला हमने अकॉर्डिंग टू, आपसे अगर पूछा जाता है क्वेश्चन के क्लास डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, वो सिर्फ वो पहले 5 बताने हैं। ठीक है, वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कंट्रैक्ट, वाइड एग्रीमेंट, वाइड कंट्रैक्ट,
ठीक है, वाइडेबल और इलीगल। ये क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन बहुत आसान है, सिंपल। आसिफ अभी जो आप दे रहे हैं वो फूल वाली बात नहीं पसंद आई थी? ओके 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 ओके। आप यहाँ कराची से हैं या किसी और डोमेन से? ओके 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 ओके। नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन में 3 चीजें आएंगी, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और क्वासी। एक्सप्रेस तो रिटन, स्पोकन, वर्बल शेप सारी इसमें आएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन कंटेक्ट बनता कैसा है? एक तो एक्सप्रेस है, ठीक, इसकी 3 काइंड्स है, एक्सप्रेस, रिटन, स्पोकन, वर्बल शेप, ये सिंपल है। दूसरा इम्प्लाइड कंटेक्ट, जो इम्प्लाइड ऑफर बताई थी, कुली ने सामान उठाया या आप जूते उतार के बैठे हैं, किसी बच्चे ने आके जूते पॉलिश किए, आपने मना नहीं किया, ठीक है, आपका हक बनता है उसको पैसे दें, यानी वो सिचुएशन कि जब कंट्रैक्ट एक्सप्रेस या रिटन या वर्बल शेप में नहीं, ठीक, बट इन्फर्ड फ्रॉम द एक्ट या कंडक्ट या सर्कमस्टांसेस, इसको हम इम्प्लाइड कंट्रैक्ट कहते हैं। अगर ये क्लियर नहीं है तो मुझे बताएं। जैसे आप होटल पे गए, कोई ऑर्डर नहीं किया, वो बंदा चाय के 2 कप ले आया, आपने चाय पी, अब आपका हक बनता है उसको पैसे दें। कोई डाउट? यस यस। इसमें आप 2 बातें समझे ना, एक तो ये है कि आपने इसको बुलाया कि ये शूज पॉलिश कर दो, ये तो है एक्सप्रेस, लेकिन एक ये है कि वो आप शूज उतार के बैठे हो, उसने बच्चा एक आया, उसने शूज पॉलिश शुरू कर दिए, लेकिन वो बच्चा आपका भांजा भतीजा नहीं था, तो अब आपका इखलाकी हक बनता है कि उसको पैसे दें, ठीक है। वो आपने नहीं कहा था, लेकिन आपने इसको मना भी नहीं किया, ठीक है, तो ये कॉसी कंट्रैक्ट में भी जाएगा, तो ये आपका इम्प्लाइड कंट्रैक्ट है। क्लियर? आगे चलें। ओके, इसका लास्ट पॉइंट है क्वासी कंट्रैक्ट। क्वासी कंट्रैक्ट का जो मेन चीज पिक करनी है सबसे पहली, इट इज नॉट अ कंट्रैक्ट। इसका एमसीक्यूज भी आता है, इट इज कंस्ट्रक्टिव कंट्रैक्ट। क्वासी कंट्रैक्ट, the law imposes certain obligation under some special circumstances. It is based upon principle of equity, that a person shall not be allowed to get benefit at the cost of another. In fact, it is not a contract, but create relation similar to contract. It is called constructive contract. इसको अभी आपका टाइम खत्म हो गया, कल यहीं से इंशाल्लाह शुरू करेंगे, ठीक है, तो टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ओके, इंशाल्लाह क्लियर होंगे, कल इनके एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक्स। ये लेक्चर इनके पास सेव होते हैं, मुझे नहीं पता ये इनका क्या पैटर्न है, ये आईसीएमए की वेबसाइट पे आ जाएंगे कुछ दिनों तक, ठीक है बेटा।